one other prominent Congress leader who was arrested and taken to Assam by the Assam police on almost similar charges was Jignesh Memani. He's joining us now, Congress MLA from Gujarat. Mr. Memani, thank you so much for speaking to NDTV. I want to start by asking you, sir, you saw what happened, a high voltage drama that took place in Delhi where Mr. Pawan Khera was arrested. Did it remind you of the time when you had to face the scrutiny or the action by the Assam police? So apart from being extremely humiliating, what Delhi police and Assam police have done, probably upon the instruction of PMO, is absolutely illegal and unconstitutional. This is exactly the same treatment that I was subjected to few months back. When Assam police comes to pick me up, or when the Assam police goes to pick up Pawan Khera, they do not provide the copy of FIR, they do not give any arrest warrant, they do not provide the copy of any production for which he is required. So this is completely illegal, and it raises a very obvious and fundamental question. If at all Prime Minister of India is defamed, whether by Jignesh Memani or by Pawan Khera, only he can be the complainant. Some public interest litigation is not going on where anybody can be the party. The law is very clear and settled. If at all somebody is defamed, and let me clarify it here, the words that Mr. Pawan Khera used, in my view, I think as far as my information is concerned, he has taken those words back. The matter is over. He has conveyed his sorry. So why Assam police comes into the picture? But you know, Jignesh Bhai, it's also a lot of similarities between what happened with you and also with Mr. Pawan Khera. पवन खेरा ने एक प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कही, उसके बाद उन्हें असम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. आपने भी एक ट्वीट किया था, एंड फॉर दैट रीजन यू हैड टू फेस द म्यूजिक एज फार एज असम पुलिस इज कंसर्न. उसके पहले मैं आपके दर्शकों के लिए यह बताना चाहता हूं कि असम पुलिस को दिलचस्पी क्या है. असम या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को क्यों भेजता है? पवन खेरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को क्यों भेजता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति असम में बहुत बढ़िया है? क्या वहां पुलिस के लिए कोई काम नहीं बचा है? ये कहीं ना कहीं पीएमओ की सूचना पर, पीएमओ के इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है. तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच के सीने का दावा करते हैं, वो इतनी कमेंट भी झेल नहीं पाते? वो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरे जैसे लोगों के ट्वीट को भी झेल नहीं पाते? ये कैसे चलेगा लोकतंत्र में? और आप मुझे भी जब पुलिस गिरफ्तारी करने आए तब मुझे ये नहीं बताया कि भी कौन सा ऑफेंस है, कौन सी धाराएं लगी है. मैं बोला मुझे अपने सीनियर लॉयर से बात करने दीजिए, मेरे फैमिली को इन्फॉर्म करने दीजिए, मुझे आप एफआईआर का कॉपी दीजिए, मैं आपको कोऑपरेट करना हूं, मैं आपके साथ जहां पर लेके जाना चाहते हो आई एम रेडी. फिर भी सारे कानून और संविधान के धज्जियां उड़ाकर मुझे इलीगली न केवल अरेस्ट किया, मैं जब आसाम पुलिस की कस्टडी में था, इस बात को याद रखना पड़ेगा, तब मेरे खिलाफ दूसरा मॉलेस्टेशन का फॉल्स फ्रिवलस दूसरा एफआईआर किया. ये गंदगी देखिए आप. और जिसके बारे में आसाम की जुडिशरी ने, आसाम के मैजिस्ट्रेट ने मुझे बेल देते वक्त ये शब्द कहे, द एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट जिग्नेश मेवानी इज फॉल्स, फ्रिवलस, fabricated, manufactured and clearly filed with an intention to keep accused Jignesh Memani in jail for longer period, abusing all processes of law. And whether the government of Assam wants Assam to remain a part of democracy or whether they want to turn Assam into a police state. और ये केस की संगीनता, गंभीरता इतनी मैं देखता हूं, जज महोदय ने लिखा, मैं इस मामले की गंभीरता इतनी देखता हूं कि गुवाहाटी हाईकोर्ट को इमीडिएटली इस केस को अपने मॉनिटरिंग के अंदर ले लेना चाहिए. But you know, we spoke to the Chief Minister of Assam just a short while back, and we asked him about why the Assam police was so proactive in these cases. He simply said that they are following procedure. They are doing everything by the law. Not at all. It is absolutely illegal and unconstitutional. The FIR and the sections applied in the FIRs contains those ingredients which cannot be applied in this case. If at all Pawan Khera ji said something against Honorable Prime Minister and which is of
defamatory in nature, then the case of defamation can be filed by the one who is defamed. If I say something horrible against you, then you can be the complainant, not आपकी फूफी का लड़का, right? Not किसी स्टेट का पुलिस. ये तो defamation का मामला है. तो Do you feel that somewhere this is like a message being sent to the opposition? ये हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है, आज इस वक्त पे आप वकील है, ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, एनजीओ है, पत्रकार है, या अपोजिशन की किसी भी पार्टी के नेता है, नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकारों के मुख्यमंत्री और उनके नेता डिसेंट को, वॉइस ऑफ डिसेंट को या किसी भी प्रकार के विरोध को वो लोग पचा नहीं पाते. दे कैन नॉट डाइजेस्ट. साथ साथ उनका ये घमंड है कि हम तो सत्ता पे है, 2014 से कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इस प्रकार का उनका ये एटीट्यूड है. तो जब चाहे तब जिग्नेश मेवानी को उठाया, जब चाहे तब किसी पत्रकार को उठाया. मैं दोबारा आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, धवल पटेल नाम के अहमदाबाद के पत्रकार ने विजयी रूपाणी सरकार गिर सकती है केवल इतना लिखा और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस कर दिया. आज हार्दिक पटेल जो उनके कैंप में है, वो छोटी मोटी कोई कमेंट करता था तो उनके खिलाफ भी सेडिशन के केसेस लगाते थे. तो सेडिशन के केसेस लगाना और विपक्ष के सारे फोर्सेस को, चाहे वो मीडिया हो, एनजीओ हो, एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो, सबको हर कीमत पर टारगेट करना, यही उनका प्लान है, यही उनकी मंशा है, यही उनकी मॉडस ऑपरेंडी है. हाँ, चापलूसी की कुछ होड़ भाजपा के नेताओं के बीच में, भाजपा के मंत्रियों में लगी हो सकती है. कुछ लोग मोदी साहब के ज्यादा चहीते बनना चाहते हो, ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसमें आप सारी हदों पार करो. एक प्रवक्ता को प्लेन से निकालो, इतना जलील करके उसको आसाम ले जाने की कोशिश करो, भाई क्या मतलब है? इफ एट ऑल उन्होंने कोई गुनाह किया तो लेट देयर बी नो ऑफेंस अगेंस्ट हिम इन दिल्ली. In the end, I want to ask you, does it instill fear? Are you fearful of saying something and you'll be arrested? नहीं, देखिए, मैं ऐसा खुलकर कहना चाहता हूं, हम लोगों ने इस जीवन में तय कर लिया है, बीजेपी और आरएसएस से आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं. और जब दिलो जान से आप लड़ते हैं तो कभी ना कभी उसका कुछ खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ता है. हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है. डर के इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते. इनको जो करना करे, आसाम पुलिस आए, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस आए, ऊपर बर्मा से म्यांमार से पुलिस को बुलाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम अपना काम कर रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी से कर रहे हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे.